So, good morning, students. Once again, today we will discuss about the corrosion. So, first of all, do you know what is corrosion? What is it? Hmm. Hmm. So, corrosion means eating up of metal. Metals are eaten up. Metals are destroyed. You have seen that sometimes if iron articles, rod, grill, if it is kept for long period of time, then it get rusted. In the same way, you have noticed that glass plate, which is made up of copper, also develop green coating, and silver develop black coating on it. These all things happen due to corrosion, because this here metals like silver, copper, and iron is reacting with the moisture, acids, and some other chemicals present in the surrounding. So first of all, you come to know what is corrosion. Corrosion is the process of, it is a process eating eating up of due to air, moisture, and chemicals present in the surrounding. Present in the surrounding. So this is the corrosion. Okay. Corrosion destroy the metals. Mainly the corrosion is very, very harmful for the iron. It affects the economical condition of our country, of any country. Do you know why? How do this corrosion of iron affect the economical condition of a country? The reason is that this iron is used to make buildings, to make bridges. If you have gone Patna, you have seen so many bridges are made, and some are governments are making these bridges. So much iron rods are used up there, and suppose the iron which is used in the bridges, in the buildings, when this get rusted, then what happens? This building and bridges will destroyed, it will break. So in the for the this making building and bridges, government use so much money. So in this way, the economical condition of a country is affected by this corrosion. So in the case of iron, the formula, this symbol of iron is Ap. Iron corrosion takes place. How and what are the conditions necessary for corrosion in the iron? Please come to see. This iron react with atmospheric oxygen and water, O2 plus H2O. Okay, and then it forms Fe2O3. Iron oxide, it develop iron oxide dot XH2O. X means it is variable. It may be 1, 2, 3, not constant here. So, like the formula beta rust, RU rust. हो सकता है नेट का दिक्कत होगा तो this Fe iron react with atmospheric oxygen and form and not only with oxygen, it also react with atmospheric water.
water vapor is present in the surrounding, in the atmosphere. Water vapor is present that react with iron and form rust here. The formula of rust is Fe2O3 dot XH2O. The color of this iron is gray, but when it is kept in open air, then it forms rust. The color of this rust is reddish brown. RB, reddish brown. Okay, so here you are seeing that in the case of iron, two things are necessary. Number one is oxygen and number two is water. If any one out of these two things, either oxygen or water is absent, rusting will not take place. Okay, so for this one activity is there that for the rusting, oxygen and water both is necessary. That activity, please see. Take 3 test tubes. Test tube A, this is one or A. Second one is test tube B and this is test tube C. These all three, 1A, B, C, all test tubes are clean and dry. Okay. In test tube A, B, C, everywhere you keep one or two unrusted nail. There is no rust, no, unrusted, without rust. One nail you put there. Then in test tube A, you put boiled water. Take some water, distilled water, boil it, and here you fill what you have kept there? Boiled water. Boiled water. What is the benefit of taking boiled water? If we are taking boiled water, then there will be no oxygen. All of you know, beta, that water also contains dissolved gases like oxygen and carbon dioxide. And that gases is used by aquatic animals like fishes and plants. Fishes use dissolved oxygen and plants, aquatic plants use dissolved carbon dioxide. So if we are boiling, then dissolved oxygen and carbon dioxide comes out and it contains only water. There is no air. And after that, you put one drop of oil. क्या है? Oil. Any oil. Coconut oil and mustard oil. What is the benefit of putting one drop of oil? Here, this oil will spread over the water and make a thin film so that atmospheric oxygen cannot dissolve there. Okay. So here we are. हाँ, boiled water में float करने लगेगा so that oxygen present in the atmosphere cannot dissolve there. समझ में आया? इसलिए तेल लिया गया ताकि अब ऑक्सीजन तो है नहीं, लेकिन अगर छोड़ देंगे तो ऑक्सीजन फिर से जैसे जैसे पानी ठंडा होगा ऑक्सीजन घुल जाएगा उसमें। लेकिन अगर ये तेल है तो तेल ऑक्सीजन को अंदर जाने film over the water allow atmospheric oxygen to dissolve in the water present in the test tube. You understood, Sanubhya? Sanubhya, समझ में आया? Very good. Then you put a cork there. एक cork लगा दे. एक cork है and keep it here. In test tube B, here you one unrusted iron you have placed there. Then you put some anhydrous calcium chloride. ये क्या लिया है? Anhydrous calcium chloride, CaCl2. This anhydrous calcium chloride का क्या काम है? Why we are using? It absorb the moisture. ठीक है? एयर में वाटर वेपर भी है, तो
एयर में से ये वाटर को एब्सॉर्ब कर लेगा, देन व्हाट ओनली एयर विल बी प्रेजेंट हियर and then again you put here cork. So this test tube contains only air but no water vapor because this anhydrous calcium chloride has absorbed all the water vapor from this air present in the test tube. Here what is beta? Here water is present but no air because this oil is not allowing this air to enter or mix up with the water present in the test tube. Now, you come to test tube C. In test tube C, unrusted iron is there and do not you put anything, only you put a cork or open it. No need to open it and or put. You can do anything. Either don't put cork and keep this arrangement for 1 week की हाँ क्या बोले, कहां से बोले? टेस्ट ट्यूब ए, बी और सी। बी से देखो, बी में हम लोग एक क्या लिए हैं, क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब ले चुके हैं और उस क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब में हमने एक अनरास्टेड आयरन नेल डाला है। उसके बाद हमने क्या बोला कि इसमें थोड़ा सा एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डालना है। तो इसका क्या काम है, क्यों हम लोग डाल रहे हैं? दिस एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का क्या विशेषता है, ये मॉइस्चर को एब्सॉर्ब कर लेता है। एब्सॉर्ब मॉइस्चर, मॉइस्चर को ये एब्सॉर्ब कर लेगा। मॉइस्चर मतलब नमी, पानी में जो वाटर, जो एयर होगा, एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है। आप जानते हैं एटमॉस्फेयर क्या बोलते हैं, कंपोजिशन ऑफ एयर 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और बाकी 1% में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, कार्बन मोनोऑक्साइड, अदर गैसेस है। तो ये अगर आप एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड यहाँ डाल दिए हैं तो इस टेस्ट ट्यूब में से जो एयर है उस एयर का पूरा मॉइस्चर एब्सॉर्ब हो जाएगा। देन ओनली यहाँ पर क्या बचेगा, नो वाटर वेपर। हाँ अब बोलो, अभी भी नहीं समझ में आया? हाँ, और टेस्ट ट्यूब सी की बारी आई तो हम इसमें बोले टेस्ट ट्यूब सी में केवल एक आयरन, अनरस्टेड आयरन नेल डालकर ओपन ही छोड़ दीजिए ताकि इसमें एयर मॉइस्चर सब आता रहे। और दिस अरेंजमेंट को ऐसा करने के बाद तीनों टेस्ट ट्यूब को एक जगह आप 1 वीक के लिए छोड़ दें, 1 सप्ताह, बिकॉज दिस रिएक्शन इज स्लो। और आफ्टर 1 वीक you bring all these 3 test tube, ठीक है, and you will observe that rusting has taken place in A and also iron nail present in the test tube B. No, sorry, rusting has not taken place. A में भी rusting नहीं हुआ, B में भी rusting नहीं हुआ, बट C में क्या हो गया, C का आयरन नेल क्या हो गया, रस्टेड हो गया, इसमें रस्ट आ गया। बाकी ए में नहीं आया, बी में नहीं आया और सी में रस्ट आ गया। ये बात समझे, दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन। तो ए आयरन नेल ऑफ टेस्ट ट्यूब ए गेट रस्टेड, आयरन नेल ऑफ टेस्ट ट्यूब बी गेट रस्टेड, बट आयरन नेल ऑफ टेस्ट ट्यूब सी, sorry, A iron nail of test tube A does not rusted, B also does not rusted, but iron nail of test tube C get rusted. क्लियर है श्वेता? आप यहाँ देखिए क्यों यहाँ रस्टिंग नहीं हुआ ए और बी में। तो आप देखिए ए में क्या था, बॉइल्ड वाटर, लेकिन ये तेल था। बॉइल्ड वाटर लेने के कारण इसमें का जो डिजोल्व जो ऑक्सीजन था वो भी बाहर निकल चुका था बॉइलिंग के समय, और तेल डाल दिए तो अब ऑक्सीजन इसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि टेस्ट ट्यूब ए में ओनली वाटर है बट नो एयर। ए में क्या प्रेजेंट है, वाटर तो है बट नो एयर। टेस्ट ट्यूब बी में क्या है, एयर तो है, ऑक्सीजन तो है बट नो वाटर, यहाँ वाटर नहीं है।
और टेस्ट ट्यूब सी में क्या मिल रहा है? एयर भी मिल रहा है और वाटर भी मिल रहा है और एयर भी मिल रहा है, इसलिए टेस्ट ट्यूब सी का जो है वो रस्टेड हो गया। इट मींस रस्टिंग के लिए वाटर एज वेल एज ऑक्सीजन बोथ इज नेसेसरी। समझे? अच्छा, तो अभी ये जब समझ में आ गया कि आयरन के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए और वाटर भी चाहिए, तो हम लोग इस कंसेप्ट को यूज करके आयरन को रस्ट होने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? आयरन को रस्टेड होने से बचाने के लिए क्या क्या प्रोसेस है? हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग? क्योंकि आयरन का यूज बहुत ज्यादा है, उतना यूज कॉपर का नहीं है, उतना यूज चांदी का नहीं है, बट आयरन का सबसे ज्यादा यूज है। सो मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग, मेथड प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। रस्टिंग से बचाने के लिए हम क्या क्या करेंगे? नंबर वन, कोई भी आयरन आर्टिकल्स है, अगर आपके पास कुछ नहीं है देन उसके ऊपर तेल डाल दीजिए। तेल आप जान रहे हैं एयर के कांटेक्ट को कट कर रहा है। सो अप्लाइंग बाय अप्लाइंग ऑयल। ठीक है, सेकेंड, ये ऑयल जो है एयर के कांटेक्ट को को भी नहीं आने देगा, दोनों ही कट करेगा। बाय पेंटिंग, देखते होंगे अपने घर में ग्रिल है ना, ग्रिल जो गेट है लोहा का, वो पेंट करते हैं, पेंट करते हैं। क्या पेंट क्या कर रहा है? उसके ऊपर एक थिन लेयर डेवलप कर रहा है जो कि अंदर हवा और पानी दोनों को ही नहीं जाने देगा। तो इससे भी आपका आयरन आर्टिकल्स रस्ट नहीं होगा। नंबर थ्री, एलोय बना सकते हैं, मेकिंग एलोय। एलोय क्या है? यस, हाँ वो भी करेंगे। हाँ हाँ करेंगे, पहले एक एक करके ना, एक ही बार हम पांच नहीं लिख सकते बेटा। बाय मेकिंग एलोय, हाँ बाय मेकिंग एलोय, आपके घर में जो बर्तन स्टील का यूज हो रहा है, स्टेनलेस स्टील, ग्लास, प्लेट्स, है ना, बॉल्स, तो वो स्टेनलेस स्टील में क्या है? स्टेनलेस स्टील जो है, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील में आपका क्या है? आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकल प्लस थोड़ा सा कार्बन। आयरन जो है, आयरन प्लस क्रोमियम, निकल एंड आयरन के साथ थोड़ा कार्बन भी मिलता है, यही है आपका स्टेनलेस स्टील का कंपोनेंट। I am saying that iron can be also prevented from the rusting by making alloy. Alloy, what is alloy? It is the homogeneous mixture of two or more than two metal, or a metal or a metal or a non-metal. Here one example I have given you, that you have every day, you are noticing that iron articles, suppose you have iron rod, it will get rusted, but iron, a stainless steel which is also made up of iron, do not rust it. The reason is why? The reason is what? This a stainless steel is a alloy. In the stainless steel, four things are present. Four metals are present. Number one is iron. Second one, chromium. Third is nickel. And one non-metal, carbon, is also present. So, by making alloy, we can also prevent rusting. This is to
So by making alloy also the corrosion is prevented. Number 4 method is galvanization. Galvanization. Galvanization में क्या होता है? Suppose you have a bucket. This is a bucket. ठीक है? So after formation, when this bucket is made by iron, and after the formation of this bucket is dipped in the zinc solution. Suppose in this cup zinc is melted zinc. Like when we are heating the wax also get melted like water. So here also this zinc is a melted zinc is kept there, and then this bucket is dipped into this zinc solution and taken up. Then the outer layer of this bucket on both sides, a thin film of zinc will develop. This is galvanization. What is galvanization? Process of making thin film of zinc layer on mainly the iron particles. That is called galvanization. And here this zinc will not allow air and water to come in contact with iron, and that's why this bucket will not rusted. So these are the 4 methods by which we can prevent rusting. Okay. Now, second example given in your NCERT is corrosion in copper. हमारे पास 4G दिखा रहा है, अपना तुम चेक करो. In case of copper, suppose this is copper react with atmospheric carbon dioxide and water, CO2 plus H2O plus oxygen, and it develop a thin layer of copper carbonate, CuCO3 dot copper hydroxide. And due to the formation of this copper carbonate and copper hydroxide, this copper develop green coating. The color of this compound is green. Okay, so copper also get corroded. Third example is, this is second example. Third example, in the case of third example is corrosion in copper, silver. Corrosion in silver. Silver मतलब चांदी. You have noticed that the silver articles like any ornaments, pile, chain, anguthi, if we are not using for long period of time, then it becomes black. So why this silver become black? Because this silver Ag react with sulfur. Different things are reacting with different things. In the case of iron was reacting with oxygen and water. In the case of copper is reacting with carbon dioxide, water and oxygen. In the case of silver, it reacts with sulfur and it develops Ag, silver sulfide. AgS you can write, or Ag2S also you can take. Ag2S. This is silver sulfide. So due to this silver, the color of this silver sulfide is black.
So due to formation of this silver sulfide, silver articles become black. You understood, Sanopia? हाँ, वेरी गुड। अभी किसी कोई कोई बोल रहा, आवाज नहीं आ रहा है। तो आपने क्या देखा? कोरोजन। व्हाट इज, पहले आप चार चीज आज पढ़ा आप। कोरोजन, व्हाट इज कोरोजन एंड कोरोजन तो बहुत सारे जगह में हो रहा है, बहुत सारे मेटल्स में हो रहा है, बट हमको पढ़ना है कोरोजन ओनली इन थ्री मेटल्स। नंबर वन इन द केस ऑफ आयरन, जो रस्ट बनाता है। नंबर टू कोरोजन इन कॉपर, जो कि ग्रीन कोटिंग डेवलप करता है, ठीक है। एंड नंबर थ्री कोरोजन इन सिल्वर, जो कि आयरन आर्टिकल, आयरन सॉरी सिल्वर आर्टिकल्स जो भी है वो ब्लैक कोटिंग डेवलप करते हैं, ठीक है। सो थ्री एग्जांपल्स आपका एनसीईआरटी में है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन आया बोर्ड में कि एक स्टूडेंट्स तीन प्रकार का कॉइन्स इकट्ठा किया है अपने पास। एक जो कॉइन्स है वो आयरन है, दूसरा कॉइन्स जो है वो कॉपर का उसके पास है, और तीसरा जो कॉइन्स है उसके पास चांदी का है। और महीना दो महीना के बाद वो पाता है कि एक कॉइन्स जो है वो ग्रीन हो गया, दूसरा कॉइन्स ब्लैक हो गया, और तीसरा कॉइन्स रेडिश ब्राउन हो गया। ऐसा क्यों हुआ? आंसर बताना था। तो सिल्वर वाला कॉइन्स क्या हो जाएगा? ब्लैक। क्यों हुआ ब्लैक? बिकॉज सिल्वर रिएक्टिंग विथ एटमॉस्फेरिक सल्फर and form silver sulfide. The color of silver sulfide is black. Second, copper वाला coins कैसा हो गया होगा? Green. Why? Because copper is reacting with atmospheric carbon dioxide, water and oxygen and forming a thin layer of copper carbonate and copper hydroxide. And the color of this compound is क्या है? ये ग्रीन है। और उसके बाद हाँ, आयरन आर्टिकल्स वो क्या हुआ होगा? ब्राउन। क्यों? बिकॉज आयरन इज रिएक्टिंग विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड वाटर एंड फॉर्म्स रस्ट देयर, दैट इज Fe2O3.XH2O। इसके पहले हम लोग लिख के बता चुके हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं है। हाँ बोलिए। हाँ, वो बहर भी कर सकता है, एक दो तीन चार, वो जितना ज्यादा पानी रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। रस्ट का फॉर्मूला एक्स ही लिखते हो, वो कांस्टेंट नहीं है। आ गया समझ में बेटा? अभी सेकंड जो आपका एप्लीकेशन है या बैड इफेक्ट्स और ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, वो है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी, ये रैंसिडिटी क्या है सबसे पहले ये जानना है। तो हम ऐसे समझाते हैं, बच्चे लोग तुम लोग बहुत ज्यादा चिप्स और कुरकुरे खाते हो ना, और हल्दीराम का भुजिया वगैरह कभी कभी। हाँ, बहुत खाना हम भी पसंद करते हैं, सब कोई खाना पसंद करता है उसको। तो कभी कभी हम लोग हड़बड़ी में क्या करते हैं, दुकानदार को पैसा दिए और दे दिए और रख लिए, पता नहीं लीक हुआ रहता है, रहा होगा दूसरा भी फट गया, तो फट जाने के कारण उसके अंदर का हवा जो है वो निकल जाता है। तो वो अगर वो मान लीजिए उसके पास निकला हुआ रह गया है 10 दिन, 5 दिन, 4 दिन, और उसके बाद वही वाला हवा निकला हुआ आपको भुजिया आपको दे दिया, तो उसका टेस्ट अच्छा लगता है कि उसका टेस्ट खराब हो जाता है? हाँ, और स्मेल। हाँ, उसी तरह से घर में भी बेटा बहुत समय हम लोग बहुत ज्यादा ज्यादा खाना बनाते हैं, जैसे निमकी, ठेकुआ, पर्व के समय निमकी बनाते हैं ना। हाँ, तो जो निमकी, जो फ्रेश निमकी है, जो निमकी आज बना है कल बना है, उसको खाइए। और कभी कभी वो डब्बा में रख दिए बना करके, और एक आध दिन खाए और भूल गए, उसमें खाए ही नहीं, तो याद आता है 1 वीक के बाद कि अरे इसमें हम लोग तो निमकी रखे हैं, हमारे पास था, खाए नहीं। उसको भी खाइएगा तो उसका भी टेस्ट खराब हो जाता है और स्मेल बर्बाद खराब हो जाता है।
ऐसा क्यों हो रहा है? यही है रेंसिडिटी, यही है रेंसिडिटी बेटा। इसमें क्या होता है कि जो भी फूड आइटम में जिसमें तेल का यूज हुआ है, तेल मतलब फैट, आप तेल यूज कीजिए, डालडा यूज कीजिए, घी यूज कीजिए, सब में क्या, वो फूड का फैट है, वो फैट जो है वो वातावरण में जो 1%, वो कोई भी आप डब्बा में रखे होंगे तो एकदम डब्बा एकदम भर के भी एकदम बंद करके रखे होंगे, फिर भी उसके बीच में जैसे निमकी डाले होंगे तो बीच बीच में गैप होगा, और उस गैप में भरा होगा एयर, और उस एयर में है 21% ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन से आपके जो निमकी है उसके अंदर जो फैट है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। वही फैट के ऑक्सीडाइज हो जाने के कारण उसका टेस्ट और स्मेल दोनों ही अनप्लीजेंट हो जाता है। प्रोसेस है, उसको क्या कहते हैं, रैंसिडिटी। और वो फूड को बोलेंगे अरे ये रैंसिड हो गया, इसको नहीं खाएंगे, फेंक देते हैं। समझ में आया सहनुप्या? हाँ, तो अभी इसका हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, व्हाट इज रैंसिडिटी। तो rancidity is the process of oxidation of fat containing fats, mainly a food containing fat, due to which its taste and smell become unpleasant. Write down it up. Process of oxidation of fats, oxidation of fat of food stuff, due to which the taste and a smell of food become unpleasant. Is called rancidity. ठीक है, यही है रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी से बचाने के लिए हम लोग चाहेंगे इतना मेहनत करके हम लोग खाना बनाएं और वो खराब हो जाए? दुकानदार चाहेगा कि हमारा जो भी है, भुजिया राम का जो मालिक है और जो भी चिप्स लेस है, बहुत सारे आइटम है, उसका मालिक चाहेगा कि उसका फूड खराब हो जाए और वो फेंक दे और उसको कोई मुनाफा ना हो? नहीं चाहेगा। तो हम लोग को इस रैंसिडिटी को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए, रैंसिडिटी को प्रिवेंट करना चाहिए। तो मैं कैसे हम लोग रैंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं? मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ rancidity. Methods of prevention of rancidity. नंबर 1, जो सबको ही देखा है, चिप्स, कुरकुरे और भुजिया सब में क्या भरा हुआ रहता है? हवा। वो हवा जानते हैं कौन सा हवा है? हाँ, वेरी गुड। तो पहला मेथड वही हम लोग जो देखते हैं उसी को डालते हैं। फ्लशिंग द फूड फ्लशिंग द फूड आइटम विथ नाइट्रोजन गैस। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया बेटा, 1 नंबर में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? चिप्स कुरकुरे का जो पैकेट्स है वो नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है उसमें, क्यों? द रीजन इज नाइट्रोजन जो एक गैस है ना, ये काफी इनर्ट गैस है। ये कैसा गैस है? इनर्ट गैस है, किसी से रिएक्शन नहीं करता है। अभी देख रही होगी कहीं कहीं पर ऑक्सीजन का क्या हुआ,
ऑक्सीजन का टैंक का वहां से जो भाल्व है, ये सीधा जाओ, ऑक्सीजन का जो टैंक है वो भाल्व है, फट जा रहा है, खराब हो जा रहा है, ऑक्सीजन गैस बाहर निकल रहा है, जहां भी कहीं कहीं हॉस्पिटल्स में ऐसा हुआ। अगर जहां वो गैस निकल रहा है बेटा, और वहां अगर कोई एक माचिस का तिल्ली जला के छोड़ दे या जो भी है, वो आउट ऑफ बहुत ज्यादा आग लग जाएगा। ठीक है, हमारे वातावरण में भी ये जो 78% जो नाइट्रोजन है, उसी के कारण जो बर्निंग है हमारे कंट्रोल में है। नहीं तो ये बर्निंग अगर आप एक जगह चलाते पूरा दुनिया लहर जाता, अगर 100% ऑक्सीजन रहता है 20 वातावरण में तो। क्योंकि ये नाइट्रोजन गैस इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस में किसी चीज से इसको रिएक्शन होने नहीं देता है, किसी भी चीज को ना रिएक्शन खुद करता है ना रिएक्शन करने देता है। इसलिए अगर इस फूड में ये मान लीजिए कि चिप्स है और इस चारों तरफ क्या है, नाइट्रोजन गैस है, तो ये इसके अंदर का जो तेल है वो वहां ऑक्सीजन आएगा तब ना ऑक्सीडाइज होगा। तो ये तो चारों तरफ से हमने नाइट्रोजन गैस भर दिया है, तो भर देने के बाद यहाँ ऑक्सीजन गैस आएगा नहीं, और इसका जो अंदर में जो फैट है, तेल है, वो ऑक्सीडाइज होगा नहीं, जिसके कारण इस चिप्स का टेस्ट और स्मेल जो है वो हमेशा अच्छा रहेगा। इसलिए वो लंबे समय तक, ऐसे डेट है, एक्सपायरी डेट है, कितना उस सब चीज का लिमिट है, तो उस समय तक इसका टेस्ट और स्मेल जो है वो अच्छा रहेगा और हम लोग उसको खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। तो नंबर 1 मेथड है the food item with nitrogen gas. ना सेकेंड और क्या कर सकते हैं, जब हमें तो फैक्ट्री वगैरह में करते हैं जहां पर लार्ज स्केल में फूड वगैरह का प्रोडक्शन हो रहा है। आगे हम लोग घर में भी बहुत सारे काम करते हैं, जैसे जो भी हम लोग निमकी बनाए या ठेकुआ बनाए, उसको हम लोग ऐसे खुला में नहीं छोड़ते हैं, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, एक बंद कंटेनर में रखते हैं। हाँ, बंद डब्बा, स्टील का डब्बा या प्लास्टिक का डब्बा, जो एकदम जिसका ढक्कन जो है वो अच्छी तरह से बंद हो, तो इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में हम लोग रखते हैं। कीपिंग द फूड इन कीपिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर। ठीक है, तीसरा मेथड और है, ए ऑक्सीडेशन का प्रोसेस लाइट और हीट से भी अफेक्टेड होता है। इसलिए अगर लाइट ज्यादा है और हीट ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। इसलिए हम लोग फूड को क्या करेंगे, लाइट से भी दूर रखेंगे और हीट से भी दूर रखेंगे। जैसे हीट से दूर रखने के लिए क्या करेंगे, ठंडा जैसे फ्रिज में रखेंगे, तो वहां तो टेम्परेचर कम है, और टेम्परेचर कम हो जाने के कारण वो जो है ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा। तो कीपिंग द फूड इन, क्या लिखेंगे, कीपिंग द फूड इन कूल प्लेस, कूल प्लेस। एंड नंबर 4 है कीपिंग द फूड इन फीड फूड इन डार्क प्लेस, डार्क, जहां लाइट थोड़ा कम जाता है, तो लाइट से भी ऑक्सीडेशन ज्यादा हो जाएगा, इसलिए वहां पर भी हम लोग रख सकते हैं। 4 मेथड हो गया। एक और इसका, बोल बेटा। क्या रखा रहता है, तो सब्जी नहीं ना, यहाँ सब्जी के लिए नहीं बात हम कर रहे हैं, वैसा फूड जिसके अंदर तेल है, छाना तला भुना हुआ चीज बेटा, फ्रेश सब्जी नहीं। वो तो फ्रेश सब्जी वहां ठंडा जगह में इसलिए रखते हैं ताकि वो तो ऑस्मोसिस वाला, बायो 9th क्लास में आप पढ़े होंगे, पानी छिड़कता है ताकि अंदर पानी इंडो ऑस्मोसिस हो और पानी सब्जी फ्रेश रहे। यहाँ वैसे फूड के लिए जिसमें तेल, घी, डालडा का उपयोग किया गया है, वैसे फूड के लिए, फैट कंटेनिंग फूड के लिए, बिस्किट है उसमें, बिस्किट हो गया, ये सारे चीज जो है उसके लिए जिसमें तेल, घी, डालडा का उपयोग किया गया है, समझे। अच्छा, एक और एशियन बुक में लिखा है कि एक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड,
उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है, पांचवा मेथड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन एंड ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिशोल। अगर इस दो केमिकल का मिला देने से भी एक रैंसिडिटी कम हो जाता है। तो मिक्स करना है फूड में, क्या मिक्सिंग BHA एंड BHT। ये BHA क्या है? BHA का फुल फॉर्म है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, एनिसोल। और BHT का फुल फॉर्म है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको मिला देने से प्रिवेंशन हो जाएगा, मतलब रैंसिडिटी जो है वो प्रिवेंट हो जाता है। तो एक पांच तरीका, 5 मेथड्स आई हैव एक्सप्लेन्ड यू टू प्रिवेंट द रैंसिडिटी। और उधर में कोरोजन के लिए आपको 4 मेथड बता दिए थे टू प्रिवेंट रैंसिडिटी। समझ में आ गया? सेनोपिया, श्वेता, तो आज अभी हमारा लेशन, हाँ अभी लेशन खत्म हो गया बेटा। अभी आपको हम फिर से बता देते हैं हम लोग इस लेशन में क्या क्या पढ़े थे। तो सबसे पहले लेशन का नाम क्या था? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन था ना। तो उसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन पहले चेंजेस पढ़े, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, उसके बाद केमिकल रिएक्शन पढ़े। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के बाद केमिकल रिएक्शंस का हुआ है इसको हम लोग कैसे जान पाएंगे? तो कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपको 4 या 5 कैरेक्टरिस्टिक बताए थे। चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, और चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, स्टेट चेंज, है ना। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? केमिकल इक्वेशन। तो और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और साथ ही साथ अनबैलेंस्ड को कैसे बैलेंस करेंगे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन पढ़े। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन में टोटल 5 टाइप्स था, जिसमें पहला था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और सेकेंड था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पांचवा जो कल हम लोग पढ़े रेडॉक्स रिएक्शन, और इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का हम लोग का इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर एवरीडे लाइफ, जिसमें 2 पढ़ना था, एक कोरोजन और दूसरा रैंसिडिटी। समझ में आया? अच्छा, तो इसका तुम लोग क्या करेगा, इसका एनसीईआरटी बुक का सहायता से एनसीईआरटी में जितने इक्वेशन है उसका खूब सुंदर से तुम लोग नोट्स बनाएंगे। और नोट्स बनाने के बाद उसके बीच बीच में जो पेजेस में जो क्वेश्चन है और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है, वो सारा क्वेश्चन को तुम लोग कंप्लीट करके नीट एंड क्लीन, बहुत सारे बुक्स में एक्टिविटी है, वो सारा को लेकर के कंप्लीट करेगी, ताकि हम इसमें तुम्हारा मार्क्स बैठा सके, नोट कॉपी के लिए जो मार्क्स होता है उसमें। हाँ फेयर कॉपी में, स्कूल तो खुलेगा ना, जब भी खुलेगा, आज कोरोना ज्यादा है, अभी तो कोरोना घटना चालू हो गया। भगवान से प्रार्थना करेंगे जल्दी खत्म हो जाए और हम लोग फिर स्कूल में जिस तरह से भी हो गाइडलाइन आएगा उसके अनुसार। कॉपी में तो मार्क्स है ही, तो कॉपी को नीट एंड क्लीन अच्छे से बनाइए, और जिस दिन आपको कॉपी मांगा जाए उस दिन आप प्रोड्यूस कीजिए। अभी ये नहीं कि आज कॉपी मांगा जा रहा है तो दौड़ा दौड़ी लिखे नहीं है, रात भर जागना, वैसा नहीं। आप इसको कंप्लीट करिए और हमको एक डेट बताइए किस दिन आप हमको जमा करेंगे। हाँ टाइम ले लो बेटा, मिस ले लो। मंडे, मंडे,
घर से बाहर क्यों? एक, एक मिनट, एक मिनट, घर से बाहर क्यों जाना है? हमको कॉपी जमा नहीं चाहिए, हमको कॉपी यहाँ पर सारा जो लिखोगे उसका पीडीएफ बना करके और हमको भेज देना है। हाँ, वही चीज चाहिए, हमारे पास नहीं आना है अभी। हमको पीडीएफ बना करके हम नोट कर लेंगे कौन कौन बच्चा भेजा है। हाँ, तो वही हमको करना है कि फेयर कॉपी, फेयर कॉपी सबको अपना अपना फेयर कॉपी में बना के और हमको पीडीएफ बना करके भेज दो। ठीक है। चलो, तुम लोग डिसाइड किया ना नेक्स्ट मंडे, कमिंग मंडे, अभी जो आज तो ट्यूसडे है, मंडे बोल रहा है बच्चा लोग। जो एक सोलेबल होगा वो प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, वो घुल जाएगा वहां जो पानी है उसी में। और एक कंपाउंड जो बनता है जो घुलता ही नहीं है, क्या बोलेंगे, इनसोलेबल होता है, वहां पर वो प्रेसिपिटेट के रूप में सेपरेट हो जाएगा। एसिड और बेस वाला जो रिएक्शन होगा ना, एसिड और बेस वाला जो रिएक्शन होगा वहां सॉल्ट जो बनेगा वो न्यूट्रलाइज, बताए थे बेटा तुम लोग को कि डबल डिस्प्लेसमेंट दो तरह का है। एक न्यूट्रलाइजेशन होगा जहां एसिड और बेस रिएक्शन करेगा, और दूसरा जो है वो तुम्हारा दो सॉल्ट होगा, दो सॉल्ट जो रिएक्शन करेगा। अब वो सॉल्ट भी एक एसिडिक सॉल्ट होगा और एक बेसिक सॉल्ट होगा। सॉल्ट को हम एसिड नहीं ना कह सकते हैं, सॉल्ट को हम बेस नहीं कह सकते हैं। तो जहां एक एक एसिड और बेस रिएक्शन कर रहा है वो न्यूट्रलाइजेशन होगा, वहां पर सॉल्ट बनेगा और वहां प्रेसिपिटेशन नहीं आएगा। लेकिन दो सॉल्ट जब रिएक्शन करेगा तो वहां पर एक प्रेसिपिटेट बन जाता है। स्नेहा, कुछ क्लियर हुआ? हाँ, हाँ, देखो, आपको पता चलने के लिए अभी अचानक जैसे आप केमिकल रिएक्शन पढ़े हैं, तो आपके पास अभी मान लीजिए कि 20 केमिकल इक्वेशन पढ़े हैं इस लेसन में, है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आप 5-6 पढ़े हैं, इसमें कॉम्बिनेशन के बाद ये क्या था, डिकम्पोजिशन था, डिस्प्लेसमेंट था, ये सब। तो अभी आपको अचानक से आपको सारा केमिकल इक्वेशन के बारे में नहीं मालूम हो जाएगा। इतना आप पढ़े, 20 रिएक्शंस के बारे में पढ़े, 20 रिएक्शंस में आपको डबल डिस्प्लेसमेंट में आपको 2-3 एग्जाम्पल मिला है। जैसे एक बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट वाला, और दूसरा लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड वाला। ठीक है। तो अभी ये दो रिएक्शन जहां भी देखोगे तो तुमको तो पता चलेगा ना कि ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यहाँ प्रेसिपिटेशन हो रहा है। उसी तरह से अगले लेसन में जाएंगे, एसिड बेस में जाएंगे, मेटल नॉन मेटल में जाएंगे, तो धीरे धीरे जानकारी होगा। अभी अचानक मेटल्स एलिमेंट्स पूरा 118 है। अभी 118 एलिमेंट्स के बारे में हमको भी नहीं मालूम है सबका फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। अब एलिमेंट आया तो हम कैसे जानेंगे कि इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? ऐसा हड़बड़ाने से नहीं काम होगा। जितना सिलेबस में है उतना पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। 11th में कुछ और है, 12th में कुछ और होगा, आगे जाके और कुछ होगा। इस तरह से धीरे धीरे आपको पूरा जानकारी होगा। अभी इतना जानिए कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो प्रकार का, एक जहां एसिड और बेस डायरेक्ट रिएक्शन करेंगे वहां पर प्रेसिपिटेट नहीं फर्क बनेगा। लेकिन जो दूसरा जो सबस्टांस बनता है, दो, एक एसिडिक सॉल्ट होगा और एक बेसिक सॉल्ट होगा, और वो कंबाइन करेगा, तो एक जो कम सारा रिएक्शंस क्यों हो रहा है, यहाँ रिएक्शंस इसलिए हो रहा है न्यूट्रलाइज होने के लिए, न्यूट्रल होना। सारा यूनिवर्स तुम लोग को अनुकूल सर भी आया, वो भी चाहते हैं न्यूट्रल, सारा चीज न्यूट्रल होने के लिए चाहता है। तो न्यूट्रल होने के लिए यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है। तो इसमें एक जो सबस्टांस बनता है तो इनसोल्युबल है, पानी में नहीं घुलता है। बहुत सारी चीजें जैसे कि आपका बालू क्या पानी में घुलता है? नहीं घुलता है। उस तरह से बहुत सारे केमिकल सबस्टांस भी है जो पानी में नहीं घुलता है। तो आपको मालूम हो जाएगा कि कौन कौन पानी में नहीं घुलता है, अगर वो बन रहा है तो आप जानिए, अगर एक्स्ट्रा जानकारी आपको लेना है तो। नहीं तो एनसीईआरटी के अनुसार अभी 3-2 एग्जाम्पल ही है।
दो ही एग्जाम्पल है, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट वाला, पोटेशियम नाइट्रेट, क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट, लीड नाइट्रेट। हाँ, पोटेशियम आयोडाइड एंड लीड नाइट्रेट में, यहाँ पर बेरियम को क्या बोलते हैं, बेरियम सल्फेट जो है तुम्हारा प्रेसिपिटेट के रूप में आ जाता है, और यहाँ पर लीड आयोडाइड जो है वो प्रेसिपिटेट के रूप में आता है, इनसोल्युबल है, पानी में नहीं घुलता। ठीक है, जितना सिलेबस में है उतना ही लेके चलो। अब अचानक बहुत सारे पूरे दुनिया में जितना है वो सारा लेकर के अभी संभव नहीं है, धीरे धीरे जानकारी हो मिलेगी। हाँ, याद करना, जानना पड़ेगा कि कौन पानी में घुलनशील है, जितने भी सॉल्ट है। धीरे धीरे इंटर में जाइएगा तो अभी मान लीजिए सोडियम क्लोराइड के बारे में आप जान रहे हैं, आपका घर में यूज हो रहा है, उस तरह से बहुत सभी सॉल्ट के बारे में, जितना जो सॉल्ट है सभी सॉल्ट के उसका फिजिकल गुण जानना है, केमिकल गुण जानना है, उसका सॉलिबिलिटी जानना है कि पानी में घुलता, उसका कलर जानना है, सारा चीज जानना है। लेकिन वो स्टेप वाइज जाना है, अचानक से नहीं, अभी टेंथ में इतना ज्यादा नहीं बेटा। सॉल्ट एनालिसिस करना है, आगे जाएंगे तो अननोन सॉल्ट दे देगा, अननोन सॉल्ट देगा, और टेस्ट करके आपको बताना होगा कि इसमें, जैसे आपको दे दिया मान लीजिए कि मैग्नीशियम क्लोराइड दे दिया, तो उसको टेस्ट करके बताना होगा कि ये मैग्नीशियम है और क्लोराइड है। और कुछ? ठीक है, तो टाइम हो गया बेटा दूसरे क्लास का। अच्छा, तो नोट्स कंप्लीट हमारा यही है, और कल हम लोग बायो का लेसन 1 लाइव प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, इसलिए सब दोस्त को बोलो, क्योंकि बायो फिर समझ में नहीं आएगा, फिर बाद में चिल्लाएगा कि हमको ये नोट्स दीजिए, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक, जाओ, बाय, गुड बाय।